The next topic is linkage and recombination. Morgan carried out several dihybrid crosses in the Drosophila to study the genes that were sex-linked. The crosses were similar to the dihybrid cross carried out by Mendel in the pea. For example, Morgan hybridized yellow-bodied, white-eyed females to brown-bodied, red-eyed males and intercrossed their F1 progeny. He observed that the two genes did not segregate independently of each other and the F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 ratio जो कि expected थे when the two genes are independent. Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome and so quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of the parental gene combination were much higher than non-parental type. Morgan attributed this due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on the chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination. Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, यानी कि showed very low recombination यानी क्रॉस ए, while अदर जो है वो लूजली लिंक्ड थे जो कि शो कर रहे थे हायर recombination. For example, he found that the genes white and yellow were very tightly linked and show only 1.3% recombination. While white and miniature wing showed 37.2% recombination. His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between the gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between the gene and mapped their position on the chromosome. Today genetic map are extensively used किया जाता है as a starting point in the sequencing of the whole genome as was done in case of human genome sequencing process described later. क्रॉस नंबर ए, इसमें येलो वाइट यूज़ कर रहे हैं. इसमें जो है फीमेल जो है येलो वाइट यूज़ कर रहे हैं और जो मेल है वो वाइल्ड ले रखा है. ठीक है, इसमें जो है नेक्स्ट F1 बनवाई हमने. तो ठीक है, उसमें वाइल्ड टाइप जो है YW और Y+W+ बन रहा था और जो मेल है उसमें YW बन रहे थे. ठीक है, तो हम जब इस नेक्स्ट आया इसमें जो है F2 जनरेशन में जो है पेरेंटल टाइप जो थे वो 98.7% थे और रिकम्बिनेंट जो है 1.3% थे. ठीक है, नेक्स्ट क्रॉस जो हमने करवाया WM और W+M वाइल्ड टाइप थे और WM जो हमने इसमें डिस्टेंस देखो, इनमें डिस्टेंस ज़्यादा था तो जब हम इनका वो हुआ तो इसमें पेरेंटल टाइप 68.2% थे और रिकम्बिनेंट जो है 37.2% थे. डिस्टेंस क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा था. Result of the dihybrid cross conducted by Morgan. Cross A shows crossing between gene Y and W and cross B shows crossing between gene W and M. Here dominant wild type alleles are represented by plus sign in the superscript. Note the strength of the linkage between Y and W is higher than M and W and M. Next is polygenic inheritance. Mendel's studies mainly describe those traits that have distinct alternate forms such as flower color, which are either purple or white. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. For example, in humans, we do not just have tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of the possible heights. Such traits are generally controlled होते by 3 or more genes and are thus called polygenic trait बोलते. Polygenic traits बोलते. Beside the involvement of the multiple genes, polygenic inheritance also take into account the influence of the environment. Human skin color is another classic example for this. In polygenic trait, the
phenotype reflect the contribution of each allele. That is, effect of each allele is additive, यानी add होता है. To understand this better, let us assume that 3 genes A, B and C जो होता है कंट्रोल करता है स्किन कलर ह्यूमन, with dominant forms A, D and C responsible for the dark skin color and the recessive form small a, small b and small c जो होता है for light color. The genotype with all the dominant alleles will have the darkest skin color, and that with all the recessive allele small a, small b, small c will have the lightest skin color. As expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have the intermediate skin color. In this manner, the number of each type of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. ठीक है. Next is pleiotropy. We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait. There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expressions. Such a gene is called pleiotropic gene. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of a gene on metabolism pathway which contribute towards different phenotype. An example of this is the disease phenylketonuria, which occur in human. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydrolase, and a single gene mutation. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. Next is sex determination. The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the genetist. The initial clue about the genetic or chromosomal mechanism of sex determination can be traced back to some of the experiments carried out in insects. In fact, the cytological observations made in number of insects lead to the development of the concept of genetic or chromosomal basis of sex determination. हैंकिंग 1891 में जो है हैंकिंग जो है could trace a specific nuclear structures all through the spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% जो होता है वो did not receive it. Hanking gave a name to this structure as X body, but he could not explain its significance. Further investigations by other scientists led to the conclusion that the X body of the hanky was in fact a chromosome, and that is why it was given the name X chromosome. It was also observed that in a large number of insects, the mechanism of sex determination is of XO type, that is, all eggs bear an additional X chromosome beside the other chromosomes. ठीक है. ऑल द एग जो होता है बियर करता है एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम्स यानी ऑटोसोम्स. ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म जो होता है बियर करता है एक्स क्रोमोसोम whereas some do not. Egg fertilized by the sperm having the X chromosome becomes female, and those fertilized by the sperm that do not have the X chromosome becomes the male. ठीक है. Due to the involvement of the X chromosome in the determination of the sex, it was designated to be the sex chromosome, and the rest of the chromosomes were named as autosomes. Grasshopper is an example of exotype of sex determination in which the male have only one X chromosome beside the autosomes, whereas female has a pair of X chromosomes. These observations lead to the investigation of the number of species to understand the mechanism of sex determination in a number of other insects and mammals, including man. XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosomes. Among the males, the X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. Female, however, have a pair of X chromosome. Both male and female bear same number of autosomes. Hence, the male have autosomes plus XY and females have autosomes plus XX. In human being and in Drosophila, the male have one X and one Y chromosome, whereas female have a pair of X chromosome besides autosomes.
In the above description, you have studied about the two type of sex determination mechanism, that is exotype and XY type. Both in both cases, male produce two different type of gametes, either with or without X chromosome. Second, some gametes with X chromosome and some with Y chromosomes. Such type of sex determination mechanism is designated to be example of male heterogamity. In some other organism, example bird की बात करें, a different mechanism of sex determination is observed. In this case, the total number of chromosome is same in both male and female, but two different type of gametes in term of sex chromosome are produced by female, that is female heterogamity देखने को मिलती है. In order to have a distinction with the mechanism of sex determination described earlier, the two different X chromosomes of a female bird has been designated to be the Z and W chromosome. Z and W chromosome. In other organisms, the female have one W and one Z chromosome, whereas the male have a pair of Z chromosomes beside the autosomes. ठीक है. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की बात करते हैं. इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज XY टाइप. Out of 23 pair of chromosomes present, 22 pairs are exactly same in both male and female. These are the autosomes. A pair of X chromosome are present in the female, whereas the presence of X or Y chromosome are determinant of the male characteristics. During spermatogenesis among male, two type of the gametes are produced. 50% of the total sperm produced carry X chromosome and the rest 50% has Y chromosome besides the autosome. Female, however, produce only one type of ovum with X chromosome. There is an equal probability of fertilizing of the ovum with the sperm carrying either X or Y chromosome. In case the ovum fertilizes with the sperm carrying X chromosome, the zygote develop into the female, and the fertilization of the ovum with Y chromosome carrying the sperm develops into the female, and the fertilization of the ovum with Y chromosome carrying sperm results into the male offspring. Thus, it is evident that it is the genetic makeup of the sperm that determines the sex of the child. It is also evident that in each pregnancy there is always 50% chance होता है, 50% probability होती है of either a male or a female child. It is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of the false notation. ठीक है. Next is sex determination in honeybee. The sex determination in honeybee is based on the number of set of chromosome and individual receive. कितने number of set of chromosome जो है individual receive करता है उसके basis पे होता है. ठीक है. एक offspring जो होता है formed from the union of the sperm and egg develop as a एक offspring जो कि formed होता है from the union of the sperm and the egg develop as a female यानी queen या worker बनेगी. An unfertilized egg develop as a male by means of parthenogenesis. This means that the male have half the number of chromosomes than that of the female. The female are diploid female जो होती है वो diploid होती है having 32 chromosomes and male are haploid having 16 chromosomes. This is called as haplodiploid sex determination system and has special characteristic features such as the female produce sperm by mitosis. They do not have father and cannot have son, but have a grandfather and can have grandson. ठीक है. यहाँ पे देखो पेरेंट है फीमेल है 32 क्रोमोसोम से, मेल है 16 क्रोमोसोम है. मियोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगी, ये जो है माइटोसिस से गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा. 16 क्रोमोसोम होंगे, 16 क्रोमोसोम होंगे, इसके में भी 16 क्रोमोसोम होंगे. जब यूनाइट करेगा अगर मेल बन रहा है सीधा जो है फीमेल्स के सेक्स क्रोमोसोम से मेल बनना है तो उसके पास 16 क्रोमोसोम होंगे. अगर मेल और फीमेल के यूनियन से बनना है तो फीमेल बनेगी और वो 32 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है.
हाँ जी, तो ये वाला डायग्राम रह गया था। इसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंस, ए और बी, क्रोमोसोमल डिफरेंस की वजह से सेक्स को डिटरमाइन करना। ठीक है, बोथ इन ह्यूमन इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला और ह्यूमन दोनों में जो है द फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ एक्स एक्स क्रोमोसोम, होमोगेमिटी होता है यानी, और मेल जो होता है उसके पास एक्स वाई होता है यानी कि हेट्रोगेमिटी कंपोजिशन होता है। देखो एक्स एक्स है, एक्स वाई है, इसके पास भी एक्स एक्स है, इसके पास भी एक्स वाई है। ठीक है, इन मैनी बर्ड्स की बात करें, इन मैनी बर्ड्स तो फीमेल हैज़ अ पेयर, फीमेल जो होती है उसके पास पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें पेयर ऑफ, इन मैनी बर्ड्स फीमेल हैज़ अ पेयर ऑफ डिसिमिलर क्रोमोसोम्स ZW, फीमेल के पास क्या है, देखो ZW है, और मेल के पास क्या है, 2 सिमिलर ZZ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये दिखा रखा है, ये जो है सबसे पहले ह्यूमंस का दिखा रखा है, ये जो है वो फिर ड्रोसोफिला, और ये जो है बर्ड्स का दिखा रखा है यानी हैन का दिखा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट इन द ऑल्टरनेशन ऑफ द DNA सीक्वेंसेस एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट इन द चेंज इन द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन टू द रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना है जो कि लीड करता है टू द वेरिएशन इन DNA। एज यू विल लर्न इन As you will learn in the chapter 6, the one DNA helix runs continuously from one DNA helix होता है वो run करती है continuously from one end to another in each chromatid in a highly supercoiled form. Therefore, loss यानी deletion या फिर gain यानी insertion या duplication of a segment of DNA result in alternation of in chromosome. Alternation करवा देता है chromosome में. Since genes are known to be located on the chromosome, alternation in chromosome results in the abnormalities or aberrations. Chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cells. In addition to the above, mutation also arises due to change in the single base pair of the DNA. This is known as point mutation. A classical example of such a mutation is sickle cell anemia. Deletion and insertion of a base pair of DNA causes frame shift mutation. The mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, there are many chemical एंड फिजिकल फैक्टर जो कि इंड्यूस करता है म्यूटेशन. दे आर रेफर टू एज म्यूटाजेंस. यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स, इट इज़ म्यूटाजन. नेक्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर. इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले पेडिग्री एनालिसिस. द आइडिया दैट द डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैव बीन प्रिवेलिंग. The idea that the disorder are inherited have been prevailing in the human society since long. This was based on the heritability of certain characteristic features in families. After the rediscovery of the Mendel's work, the practice of analyzing the inheritance pattern of trait in a human being began. Since it is evident that the control process cannot be performed in pea plant, since it is evident that the control process that can be performed in a pea plant or some other organism are not possible in case of human beings, study of the family history about the inheritance of a particular trait provides an alternative. Such an analysis of the trait in several of generation of a family is called pedigree analysis. In a pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generations. In human genetics, pedigree studies. The pedigree study provides a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality, or disease. Some of the important standard symbols used in pedigree analysis have been shown in the figure. As you have studied in this chapter, each and every feature in an organism is controlled by one or other genes located on the DNA present in the chromosome. DNA is a carrier of the genetic information. It is hence transmitted from one generation to another without any change or alternation. However, changes or alternation do take place occasionally. Such an alternation or change in the genetic material is referred to as mutation. A number of disorders in the human beings have been found to be associated with the inheritance of a changed or altered gene or chromosome. ठीक है, next is Mendelian disorders. Broadly, genetic disorder can be grouped into two categories: Mendelian disorder and chromosomal disorders. Mendelian disorders are mainly
determined by alternation or mutation in a single gene. These disorders are transmitted to the offsprings on the same line as we have studied in the principle of inheritance. The pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by pedigree analysis. Most common and prevalent Mendelian disorders are hemophilia, cystic fibrosis, sickle cell anemia, color blindness, phenylketonuria, thalassemia, etc. It is important to mention here that such Mendelian disorder may be dominant भी हो सकते हैं और recessive भी हो सकते हैं. By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in the question is dominant or recessive. Similarly, the trait may also be linked to the sex chromosome as in case of hemophilia. It is evident that the X-linked recessive trait shows transmission from the carrier female to the male progeny. रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री जो होता है वो शोन की हुई है फॉर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट. डिस्कस विद योर टीचर एंड डिज़ाइन द पेडिग्री ऑफ द कैरेक्टर्स लिंक्ड टू द बोथ ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. जो ये वाला दे रखा है, सबसे पहले तो इसमें हर जनरेशन में जो है क्या है अफेक्टेड है, ठीक है. और इसमें जो है पहले फीमेल 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 फिर फीमेल फीमेल मेल फीमेल फीमेल, ये वाला जो है किसका दे रखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट दिखा रखा है. ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट दिखा रखा है, वो भी एग्जांपल मायोटोनिक डिस्ट्रोफी. इसमें सेकंड वाले में जो है फर्स्ट जनरेशन कोई इफेक्ट नहीं है, सेकंड में मेल फीमेल दोनों, थर्ड वाले में मेल मेल फीमेल दोनों फिर मेल, ठीक है. ये है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. सिकल सेल एनीमिया दिखा रखा है, ठीक है. अब कुछ सिम्बल्स की बात करते हैं पेडिग्री में. तो अगर स्क्वायर हो तो मेल, सर्कल हो तो फीमेल, रोम्बस हो तो अनसेक्स अनस्पेसिफाइड, और अगर इनमें कलर्ड हो तो अफेक्टेड इंडिविजुअल. अगर सिंगल लाइन है तो मेटिंग, डबल लाइन है तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, यानी कौन सा ग्वेनस मेटिंग हो रही है, कौन सा ग्वेनस मेटिंग यानी कि मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, ठीक है. और पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रंस बिलो, ठीक है. और यहाँ पे अगर अफेक्टेड दिखा रखा है तो बोलता है पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़, ठीक है. और यहाँ पे अगर अंडर 5 लगा रखा हो तो 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग्स. नेक्स्ट हम लोग जो है बात करते हैं कि हमने अभी जो है अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात की थी. तो मेंडेलियन डिसऑर्डर को याद रखने का तरीका देखते हैं, ठीक है. तो हम याद रखेंगे होम कोट यानी कि होम से यानी हीमोफीलिया, कोट यानी कि कलर ब्लाइंडनेस. होम कोट का ऑर्डर आया है कैट सारे पालो. कैट से सी से यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस, ए से एल्बिनिज्म, टी से थैलेसीमिया, ठीक है. कैट सारे, एस से सिकल सेल एनीमिया, आर यानी ऑटोसोमल रिसेसिव. सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है. पालो, पी से यानी फिनाइलकीटोन्यूरिया, आलो यानी कि एल्केप्टोन्यूरिया है, ठीक है. ये जो है किसको याद करने का तरीका है, मेंडेलियन डिसऑर्डर. नेक्स्ट हम लोग जो है कलर ब्लाइंडनेस को जो है डिटेल में देखने वाले हैं, पर उससे पहले 2 पॉइंट देख लेते हैं. कलर ब्लाइंडनेस का मतलब कलर दिखने में प्रॉब्लम. कलर यानी कि रंग, कलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, रंग, यानी कि रंग. आर से रेड और जी से लास्ट रंग, जी से ग्रीन, यानी कि इसमें जो है रेड और ग्रीन कलर में डिफेक्ट होता है. रेड और ग्रीन कलर जो है नहीं दिख पाते हैं, ठीक है. और दूसरा है हमें यहाँ पे रखना है हर कलर में स्पेशलिटी होती है, यानी कि हीमोफीलिया और जो कलर ब्लाइंडनेस है हर कलर में स्पेशलिटी यानी सेक्स लिंक्ड डिजीज़ होती है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद कलर ब्लाइंडनेस. इट इज़ अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन द इधर रेड या ग्रीन कोन ऑफ द आई. रेड या ग्रीन कोन आई का जो है रेड या ग्रीन कोन जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते. फेलियर हो जाता है किसमें, टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड और ग्रीन कलर. रेड और ग्रीन कलर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाता है. दिस डिफेक्ट इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन इन द सर्टेन जीन जो कि प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे. एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें म्यूटेशन होने की वजह से ये डिफेक्ट होता है. इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ द मेल एंड ओनली 0.4% ऑफ द फीमेल. This is because the gene that lead to the red-green color blindness are on the X chromosome. Male have only one X chromosome and female have two. So the son of a woman who carries the gene have a 50% chance of being colorblind. The mother is not herself colorblind because the gene is recessive. This means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene. A daughter will not be normally colorblind unless her mother is a carrier and her father is colorblind. Next है हीमोफीलिया.
हीमोफीलिया में जो होता है क्या, हीमोफीलिया जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हीमोफीलिया यानी हीम यानी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है विच शोज ट्रांसमिशन फ्रॉम द अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनिड हैज़ बीन वाइडली studied. In this disease a single protein that is a part of cascade of protein जो कि involved होते हैं in clotting of the blood is affected. Due to this in an affected individual में जो है एक simple cut will result in a non stop bleeding करवा देता है. The heterozygous female जो होते हैं यानी कैरियर होता है for the hemophilia may transmit the disease to the son. ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर है, क्योंकि मदर ऑफ सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट कैरियर होना चाहिए और फादर शुड बी हीमोफिलिक होना चाहिए, जो कि अनवायबल रहता है इन द लेटेस्ट स्टेज ऑफ द लाइफ. द फैमिली पेडिग्री ऑफ द क्वीन विक्टोरिया जो होता है वो शो करता है नंबर ऑफ द हीमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज़. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की. उससे पहले सब्स्टिट्यूशन यानी सिकल सेल एनीमिया का हमें जो है एक छोटी सी जो है ट्रिक याद रखनी है कि इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन होता है. तो सबसे पहले हम 4 सवाल होंगे हमारे पास. सब्स्टिट्यूशन ऑफ किसका हुआ है सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें जो है सब्स्टिट्यूशन ऑफ किसका हो रहा है, बाई कौन कर रहा है, एट कहाँ पे हो रहा है, और ऑफ वो चीज़ कहाँ की है. ठीक है, तो इसमें जो होता है सब्स्टिट्यूशन होता है ऑफ गौतम गंभीर बाय वीरेंद्र सहवाग, क्योंकि गौतम गंभीर जो है कम सिक्सर मारता था. ठीक है, अब ऐसे याद रखना सब्स्टिट्यूशन ऑफ गौतम गंभीर यानी कि ग्लूटामिक एसिड का जो है सब्स्टिट्यूशन होता है बाय वेलिन से होता है, एट 6th पोजीशन पे होता है और ग्लोबिन चेन पे होता है. ठीक है, समझ में आ गया. नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सिकल सेल एनीमिया. दिस इज़ अ ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ द पार्टनर्स आर कैरियर फॉर द जीन हेटरोजाइगस होना चाहिए. ठीक है, द डिजीज इज कंट्रोल बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलीली HBA एंड HBS. सिंगल पेयर ऑफ एलीली होता है. आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली द होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HBS फॉर द HBS शो डिजीज फिनोटाइप शो करते हैं. हेट्रोजाइगस HBA और HBS जो होते हैं इंडिविजुअल अपीयर अपरेंटली अनअफेक्टेड होते हैं, बट दे आर कैरियर होते हैं ऑफ द डिजीज एज देयर इज अ 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द म्यूटेंट जीन टू द प्रोजेनी. दस एग्जिबिट करते हैं सिकल सेल ट्रेट. द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन ऑफ किससे होता है, बाय म्यूटेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन यानी कि ग्लूटामिक एंड GLU बाय वेलिन यानी कि VAL एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द अमाइनो एसिड इन द ग्लोबिन प्रोटीन रिजल्ट ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th codon of the beta globin gene from GAG to GUG. The mutant hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle-like structure. ठीक है, इससे पहले हमें इसमें जो है एक स्ट्रक्चर देखे वो देखना है. देखो ये नॉर्मल HBA जीन है. ठीक है, GAG mRNA में जो है GAG आता है आगे. यहाँ पे 6th पोजीशन पे GLU बनता है वेलिन हिज लेग थ्रो प्रो और GLU बनता है, और 7th पे भी जो है GLU बनता है. ठीक है, ये HBA पेप्टाइड है. ठीक है, यहाँ पे जो है सिकल सेल में इलोंगेटेड होंगे. सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है GUG, mRNA में जो है GUG आ जाता है, यानी कि DNA में जो है GTG. ठीक है, जो भी है मतलब GUG आ जाता है mRNA में. ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है 6th पोजीशन वेलिन बन जाता है. क्या बन जाता है वेलिन, और ये HBS पेप्टाइड शो कर रखा है. ठीक है, माइक्रोग्राफ ऑफ द रेड ब्लड सेल का माइक्रोग्राफ दिखा गया है. अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ द बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन का बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन दिखा गया है. A है फ्रॉम अ नॉर्मल इंडिविजुअल, B है फ्रॉम द इंडिविजुअल फ्रॉम अफेक्टेड इंडिविजुअल यानी सिकल सेल एनीमिया अफेक्टेड इंडिविजुअल है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में बस ये याद रखना कि फिनाइल एलानाइन जो है वो नॉर्मल कंडीशन पे जो है टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है. एंजाइम अगर लीकेज लैक है मतलब एंजाइम का लैक है तो फिनाइल पायरुवेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक फिनाइल कीटोन है. ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि फिनाइल कीटोन का बाहर जाना उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया.
मतलब कीटोन, फिनाइल कीटोन का बाहर जाना बॉडी से या एक्यूमुलेशन हो जाना, उसको बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो दिस इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होता है इज ऑल्सो इनहेरिटेड एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक करते हैं एक एंजाइम जो कि कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फिनाइल एलानाइन इज accumulated and converted to phenyl pyruvic acid and other derivatives. Accumulation of these in brain result in mental retardation. They are also excreted through the urine because of its poor absorption by kidney. ठीक है, थैलेसीमिया के लिए बस एक चीज़ याद रखना, हीमोग्लोबिन में चेन कम था, हीमोग्लोबिन में चेन कम था, हीमोग्लोबिन में चेन कम था से याद रखना थैलेसीमिया, था से थैलेसीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन में यानी चेन कम, यानी हीमोग्लोबिन में चेन कम होना, यही थैलेसीमिया है। था से बस इतना याद रखना, थैलेसीमिया। ठीक है, हम बात करते हैं थैलेसीमिया से स्टार्ट करते हैं। This is also an autosomal linked recessive blood disease transmitted from the parents to the offspring when both the partners are unaffected carrier हो for the gene यानी heterozygous हो। The defect could be due to the either mutation या फिर deletion which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chain। ठीक है, वन ऑफ द ग्लोबिन चेन का रिड्यूस हो जाता है रेट ऑफ सिंथेसिस अल्फा या बीटा दैट मेक अप द, जो कि बनाते हैं हीमोग्लोबिन। दिस कोज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनवा देता है रिजल्टिंग इनटू एनीमिया विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक है थैलेसीमिया डिजीज़ का। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो अफेक्ट हो रही है। अल्फा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्ट होती है, वाइल बीटा थैलेसीमिया में जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन जो होता है वो अफेक्ट होती है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 और HbA2 से कंट्रोल होता है, जो कि उन 16 क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट में होता है। ठीक है, एंड इट इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू म्यूटेशन या फिर डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ द 4 जीन्स। ठीक है, द मोर जीन्स अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन चेन जो है प्रोड्यूस्ड होंगे। द बीटा थैलेसीमिया जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय सिंगल जीन HBB ऑन द क्रोमोसोम 11 of each parent and occur due to mutation of one or both the gene। थैलेसीमिया जो होता है वो डिफ़र करता है सिकल सेल एनीमिया से इन दैट फॉर्मर जो होता है, यानी कि जो थैलेसीमिया की बात करें तो वो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसिस ऑफ टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, वाइल लेटर जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनएक्यूरेट या इनकरेक्ट फंक्शनिंग ग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में कौन कौन आता है इसको याद रखने का एक वो तरीका है कि फिनाइल पाइन से अल्का सिक थी, फिनाइल पाइन से अल्का सिक थी, फिनाइल पाइन से अल्का सिक थी। फिनाइल यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, पाइन से कुछ नहीं है, फिनाइल पाइन से यानी सिकल सेल एनीमिया, सॉरी से जो है वो है सी वाला से है यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोसिस। फिर अल्का यानी कि एल्केप्टोन्यूरिया, सिक यानी सिकल सेल एनीमिया, थी यानी कि थैलेसीमिया, ये सारे किस में आता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में। ठीक है, याद रखना फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है वो 12th पे होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो होता है वो 7th क्रोमोसोम पे अफेक्ट होने की वजह से होता है, एल्केप्टोन्यूरिया 3rd वाले पे। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो 11 वाले पे। ठीक है, और थैलेसीमिया अल्फा वाला जो है 16 पे और बीटा वाला 11 पे। ठीक है, अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिस्कस करने से पहले जो है हम लोग जो है सबसे पहले ये कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं जो कि क्रोमोसोम कुछ अलग अलग क्रोमोसोम में कुछ डिफेक्ट होने की वजह से जो होता है कॉज होते हैं। सबसे पहले हम याद रखेंगे डॉक्टर एडवर्ड सेड टू ड्रिंक क्लीन फिल्टर फिनाइल टू सिक पेशेंट्स। डॉक्टर एडवर्ड सेड टू ड्रिंक क्लीन फिनाइल टू सिक पेशेंट्स। ठीक है, डॉक्टर यानी कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड यानी कि एडवर्ड सिंड्रोम, टू यानी कि टर्नर सिंड्रोम, ड्रिंक यानी कि डेग्रोज सिंड्रोम, क्लिनफेंटर यानी क्लिनफेंटर सिंड्रोम, फिनाइल यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिक यानी कि सिकल सेल एनीमिया, पेशेंट्स यानी कि पटाउ सिंड्रोम। ठीक है, कौन कौन से पे होता है, कौन कौन से पे डिफेक्ट होने की वजह से होता है 21, 18, नेक्स्ट है एक्स, नेक्स्ट 22, फिर एक्स, फिर 12Q, फिर 11, फिर 13। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग जो है बात करेंगे
क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड जो होता है वो कॉज होता है ड्यू टू एब्सेंस या एक्सेस या एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, फेलियर ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमेटिड ड्यूरिंग सेल division cycle results in the gain or loss of a chromosome called aneuploidy. फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम जो होता है रिजल्ट होता है इन गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21. सिमिलरली टर्नर सिंड्रोम जो होता है रिजल्ट करता है ड्यू टू लॉस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल्स. फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज of the cell division results in increase in whole set of chromosome in an organism, and this phenomena is known as polyploidy. इसको बोलते हैं polyploidy. This condition is often seen in plants. ठीक है. The total number of the chromosome in a normal human cell 46 होते हैं and 23 pair. Out of these 22 pair are autosomes होते हैं. One pair of chromosomes होता है वो sex chromosome होते हैं. Sometimes though rarely either an additional copy of chromosome may be included in an individual और an individual जो है may lack one pair of chromosome. These situations are known as trisomy or monosomy of an chromosome respectively. Such a situation leads to a very serious consequences in the individual. Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome are common example है किसकी chromosomal disorders की. अब देखो एक चीज़ याद रखो, माता पिता बच्चा. ठीक है. अब याद रखना जो है ना, हम इसमें 3 सिंड्रोम दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी में, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम. ठीक है. तो हम जो है माता पिता बच्चा ऑर्डर याद रखना, और हम जो है पीछे से अल्फ़ाबेटिकली पीछे से चलेंगे. तो सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम, फिर क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, फिर डाउन सिंड्रोम. यानी कि माता में फीमेल्स में होता है टर्नर सिंड्रोम, मेल्स में होता है क्या क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, और बच्चों में होता है क्या डाउन सिंड्रोम. ठीक है. अब इसमें जो है देखो, अब एक चीज़ और याद रखना कि जो है जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम के नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे जो होता है क्या होता है कि फीमेल कैरेक्टर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे एक्स क्रोमोसोम कम होते हैं, नंबर एक्स क्रोमोसोम के कम होते हैं, वैसे वैसे फीमेल कैरेक्टर जो होता है डाउन होते जाता है, या फिर जो है मेल कैरेक्टर आते हैं. ठीक है. तो माता पिता बच्चा. ठीक है. तो माता में पिता के कैरेक्टर आ गए और पिता में माता के कैरेक्टर आ गए. यानी टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि फीमेल्स में मेल के करेक्टर आ जाते हैं. ये कब होगा? जब एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा, यानी कि एक्स होगा. ठीक है. इसमें पिता में क्या होता है, माता के करेक्टर आ जाते हैं. कब होगा? जब एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे, यानी एक्स एक्स वाई. और डाउन सिंड्रोम तो 21 क्रोमोसोम के ट्राइसोमी से होता है. ठीक है. अब हम एक बार डिटेल में सारे देखते हैं. सबसे पहले हम डील करेंगे विद द डाउन सिंड्रोम. द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, यानी ट्राइसोमी ऑफ 21 की वजह से होता है. दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगटन डाउन ने डिस्क्राइब किया था कब? 1866 में. द अफेक्टेड इंडिविजुअल जो होता है वो शॉर्ट स्टेचर होता है, विद स्मॉल राउंड हेड होता है, फ्यूरोल टंग होती है, पार्शियली ओपन माउथ होता है, पाम जो होता है ब्रॉड होता है, विद कैरेक्टरिस्टिक पाम स्ट्रीज होता है, फिजिकल साइकोमोटर मेंटल डेवलपमेंट जो होता है रिटार्डेड होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्लिनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें. दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम resulting into a karyotype of 47 XXY. Such an individual has overall masculine development होता है. However, feminine development जैसे development of breast, gynecomastia is also express किया जाता है. Such individuals होते हैं वो sterile होते हैं. लास्ट हमारा टर्नर सिंड्रोम. such a disorder जो होता है उस cause due to absence of one of the X chromosome, that is 45 होते हैं with XO. Such females are sterile as ovaries होते हैं rudimentary होते हैं, beside their other features including lack of other secondary sexual characters. ठीक है. आप डायग्राम देखते हैं. तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम कंपोजिशन इन द ह्यूमंस. सबसे पहले क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. ये जो है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम दिखा रखा है. टॉल स्टेचर हो जाता है विद फ्यूमिनाइज्ड करेक्टर. मेल जो होता है वो टॉल स्टेचर हो जाता है विद फ्यूमिनाइज्ड करेक्टर. बी जो है वो टर्नर सिंड्रोम, यानी कि शॉर्ट स्ट्रक्चर हो जाती है फीमेल विद एंड अंडरडेवलप्ड फीमाइन कैरेक्टर्स होते हैं. अंडरडेवलप्ड फीमाइन कैरेक्टर्स होते हैं. ये जो है डाउन सिंड्रोम पर दिखा रखा है. ठीक है. देखो 21 पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम्स आ गए. ठीक है. अब देखो इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फिगर शोइंग एन इंडिविजुअल अफेक्टेड विद द डाउन सिंड्रोम
एंड कोरस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका ब्रॉड फ्लैट फेस हो जाएगा, फ्लैट बैक ऑफ द हेड हो जाएगा, मैनी लूप आ जाएंगे फिंगर टिप्स पे, पाम्स फ्रीज हो जाएगा, कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हो जाएगी, बिग एंड रिंकल टंग हो जाएगा। ठीक है,